हेलो आनंद, तो आवाज जा रहा? हेलो आनंद, तो आवाज जा रही है? हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा, जस्ट वेट करो, हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैकेनिकल, सिविल, इसी और इलेक्ट्रिकल यही ब्रांच आएंगे। सीएनसी सीएससी अभी अलाउड नहीं है इस क्लास के लिए। देखो स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, ओके। इस डायग्राम के आधार पर आप बोल रहे हैं द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, देखो तो टोटली रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म बाय टेकिंग लाइट एज ए, ये लाइट सोर्स ले रहे, लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर इज penetration of the wave for a distance of few wavelengths beyond this surface का। if the face of second surface, ये second glass prism, if the face of this second glass prism is kept parallel to the interface, and first glass prism के ठीक सामने देखो सेकंड ग्लास प्रिज्म का फेस है, the light will tunnel through this barrier and generate a transmitted wave. So this phenomena, इस phenomena का यूज कहाँ हो रहा है? This phenomena is used in the design of fiber optic coupler and fiber optic sensor. इस फिनोमिना का यूज हो रहा है टनलिंग ऑफ फोटॉन्स का डिजाइन ऑफ फाइबर, ऑब्जेक्टिव में देगा। This phenomena is used for the design of fiber optic coupler and fiber optic sensor. Now, next is the construction of fiber optics. ये पार्ट है फाइबर ऑप्टिक। तो इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है? फर्स्ट इंटरनल पार्ट इज द कोर, एंड कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग। कोर के ठीक ऊपर में क्या है? क्लेडिंग है। उसके ऊपर क्या है? सिलिकॉन कोटिंग है। ये पार्ट सिलिकॉन कोटिंग के ठीक ऊपर में क्या है? देखो सिलिकॉन कोटिंग यहां पर है। ये सरफेस मेरा क्या बुलाएगा? बफर जैकेट। above this surface strength members are given। ठीक उसके ऊपर जो है ब्लैक पॉलीथीन जैकेट है, आउटर जैकेट। ये क्या करता है? मॉइस्चर से बचाता है ये जैकेट, आउटर जैकेट। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स में कितना तरह का पार्ट हुआ? कोर इज द इंटरनल पार्ट। cladding is, core is surrounded by cladding. Second part is the cladding. Another is silicone coating. Next is buffer jacket, strength member, and outer jacket. There are 6 parts for the construction of fiber. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन, बहुत पतला फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास। प्लास्टिक और ग्लास है और बहुत पतला है और फ्लेक्सिबल है, जिससे होकर के लाइट इज ट्रांसमिटेड। लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, देखो ये ट्रांसमिट हो रहा है ना, लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस ग्लास प्रिज्म। अब यहां बोल रहे हैं कि
Optical fiber is a very thin, flexible thread of transparent plastic or glass in which light is transmitted through total internal reflection. It consists of a central cylinder or core surrounded by a layer of material known as cladding, which in turn, असर को ध्यान दो, is covered by a jacket. Light is transmitted within the core. The cladding keeps the light waves within the core because refractive index of the cladding material is less than the refractive index of the core. The cladding also provides some strength to the core. The jacket protects the fiber from the moisture. The core as well as cladding is made by either glass or plastic. With these materials, three major types of fibers are made. First is plastic core with plastic cladding, glass core with plastic cladding, and glass core with glass cladding. These are the three types, major types of fiber. First is the plastic core with plastic cladding, glass core with plastic cladding, glass core with glass cladding. In case of plastic, the core can be polystyrene or polymethyl methacrylate. The cladding is generally made by silicon or Teflon. और किससे है? Or can be plastic का केस में, or can be made by polystyrene or polymethyl methacrylate. और क्लेडिंग किससे है? ये सिलिकॉन और टेफ्लॉन से. For the case of plastic, in case of glass, it is made by silica. देखो, both are made by silica. For case of glass, a small amount of boron, germanium, phosphorus is added to change the refractive index of the fiber. Boron, germanium, and phosphorus, when influenced in heat, it changes the refractive index. Itzav Chaudhary, unmute करो. Itzav, unmute करो जी. Itzav. Itzav Chaudhary. फाइबर कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं? मेरा चप्पल अनम्यूट करो. ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक बहुत पतला. ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन, फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास से बना हुआ है, जिससे लाइट जो है ट्रांसमिट
करता है थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फाइबर इट कंसिस्ट ऑफ ए कोर है, and core is surrounded by a layer of material known as cladding, which in turn, और ये क्लेडिंग किसके ऊपर कवर किया हुआ है, किससे कवर किया हुआ है, जैकेट से। तो ये लाइट जो है ट्रांसमिट कहां से हो रहा है, ये कोर से। ये क्लेडिंग क्या करेगा, लाइट वेव्स को अपने में रखेगा। ये क्लेडिंग यहां पर विद इन द कोर क्यों रखेगा, क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए लाइट वेव को वो अपने में रखेगा। द क्लेडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये क्लेडिंग ऑल्सो प्रोवाइड सम स्ट्रेंथ टू द कोर, and the jacket protects the fiber through moisture। ये कोर और क्लेडिंग दोनों किससे बना हुआ है, ग्लास से और प्लास्टिक से। तो ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ है, इसीलिए 3 मेजर टाइप्स ऑफ फाइबर आर मेड। फाइबर कितना तरह का बन रहा है, 3 तरह का। पहला क्या है, प्लास्टिक कोर, साथ में साथ कौन सा क्लेडिंग रहेगा, तो प्लास्टिक का क्लेडिंग रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्लास कोर प्लास्टिक क्लेडिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, ग्लास कोर और क्लेडिंग भी मेरा ग्लास ही है। तो जब प्लास्टिक के बात बोल रहे हैं तो के कोर कैन बी पॉलीस्टीरीन और पॉलीमिथाइल मेटाएक्ट्रोलाइट, और ये क्लेडिंग जो है ये क्या है, सिलिकॉन या टेफ्लॉन। ग्लास का केस में, ये जब हम प्लास्टिक का केस बोल रहे हैं तब कोर जो है पॉलीस्टीरीन और पॉलीमिथाइल मेटाएक्ट्रोलाइट से बना है, और क्लेडिंग जो है ये सिलिकॉन और टेफ्लॉन से बना हुआ है। लेकिन जब ग्लास के बारे में बोल रहे हैं तो कोर और क्लेडिंग बोथ आर मेड बाय सिलिका। जब इसमें हम लोग बोरोन, जर्मेनियम और फॉस्फोरस तीनों में से किसी एक चीज को ऐड करते हैं, डालते हैं, तो ये चेंज क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर, इसको ये चेंज करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर है, एंड इट इज ज्वाइंट with suitable connectors। आउटर डायमीटर रेंज फाइबर का कितना है, 0.1 to 0.15 mm। कोर का डायमीटर कितना है, 5 to 600 माइक्रोमीटर, और क्लेडिंग का डायमीटर कितना है, 125 to 750 माइक्रोमीटर। ध्यान देना, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर, और ये कनेक्टर से इसका जॉइंट जुड़ा हुआ है। आउटर डायमीटर फाइबर का कितना है, 0.1 से 0.15 मिलीमीटर। कोर का डायमीटर ऑफ कोर इज 0 to 600 माइक्रोमीटर, एंड क्लेडिंग का जो डायमीटर है वो 125 to 750 माइक्रोमीटर है। अब इस केस को देखो, देखो ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, इंसिडेंट रे यहां मेरा पास किया। कोर देखो, ये पार्ट अंदर का पार्ट कोर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, कोटिंग की है, क्लेडिंग हो गया। अंदर ये दिख रहा है मेरा क्या, फाइबर मटेरियल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ फाइबर मटेरियल का, 1.7। कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5।
डायग्राम में देखो दिया हुआ है, कोटिंग है, ये कोटिंग, ये पार्ट मेरा कोटिंग वाला पार्ट, यहाँ मेरा फाइबर मटेरियल है, कोर है, ये क्लेडिंग है, यहाँ मेरा ग्रेड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है कोटिंग का, और फाइबर मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.7 है। ये इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट एट द पॉइंट हियर, ये इससे होकर के पार हो रहा है, तो व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर, फाइबर का वन एंड से इंसिडेंट हुआ, at small angle it passes through the fiber. So when the ray of light is incident at this fiber, here I be the angle of incidence. जब ये ray of light ये फाइबर से होकर के पार हो रहा है, तो इस जैसे ही फाइबर पर ये स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ मेरा एंगल कितना बनेगा, I बनेगा। तो I be the angle of incidence of light ray with the axis, यही बोलेंगे ना, I be the angle of incidence of the light ray with the axis, and R, ये R क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, यहाँ R ऑफ सॉरी ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, R मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखो, ये यहाँ पर इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, थीटा बी द एंगल एट विच द रे इज इंसिडेंट ऑन द फाइबर बाउंड्री, फाइबर का इस बाउंड्री पर, इस सरफेस पर ये इंसिडेंट हो रहा है, तो थीटा बी द एंगल एट विच द रे इज इंसिडेंट ऑन द फाइबर बाउंड्री, देन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस दिस आर, ये 90 डिग्री बन रहा ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस आर। सपोज मान लेते हैं कि फाइबर, ये फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और थीटा ये क्रिटिकल एंगल इधर बन रहा, देखो तो कि थीटा इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, हम लोग जानते हैं ना, तो यहां से इस डायग्राम पर इसके आधार पर बोले थे थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, मैं सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, यहां से हम लोग जानते हैं। तो अब हम यहां बोल रहे हैं कि 1 बाई साइन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां आ जाए, n इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू मीन्स थीटा सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 बाई n, यहाँ वही ना आएगा n। अब इस पार्ट में यहाँ पर इस जगह अब हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा, इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, देन क्रिटिकल एंगल, क्या क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई n1। n1 क्यों बोल रहे हैं, n1 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर, सो द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, so in this way the ray undergoes repeated total internal reflection, देखो तो total internal reflection बार बार हो रहा है until it emerges out of the other end of the fiber, even the fiber is bent, जब फाइबर बेंड हो जा रहा है, बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फाइबर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, और रे जो है वो कहां से निकल रहा, दूसरा एंड, so the light, this light ray is guided through the fiber from one end to another end, so the bundles of optical fibers can be used for optical signal transmitting, it can also be used for transmission and receiving electrical signals,
देखो बार बार यहां से क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ, ये सब डायग्राम है, बार बार यहां पर देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, रे मेरा अदर एंड से इमिट हो रहा है। So the bundles of optical fibers can be used for optical signal transmission. It can also be used for transmission and receiving electrical signal. फिर से बोल रहे हैं इसको, जब अब देखो यहाँ when a light is incident on, ये देखो लाइट रे इंसिडेंट कहां पर हो रहा, वन एंड ऑफ द फाइबर, फाइबर का ये फर्स्ट एंड है, ये यहां पर इंसिडेंट हुआ एट ए स्मॉल एंगल, सो आई बी द इंसिडेंट एंगल, इट पासेस थ्रू द फाइबर, जब पास किया फाइबर से तो यहाँ क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट रे विद दिस एक्सिस, एक्सिस के साथ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, या आर विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब फाइबर से जब ये पार किया इंसिडेंट में, तो कहां पर इंसिडेंट हो गया, बाउंड्री सरफेस पर, इस थीटा पर, यहाँ पर थीटा एंगल बना, यहाँ इंसिडेंट होने के बाद बाउंड्री पर, if theta be the angle at which the ray is incident on the fiber boundary, then ये theta is equal to क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, चूंकि यहाँ 90 बन रहा, 90 डिग्री माइनस दिस आर। सपोज N1 अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस फाइबर का बोल रहे हैं, N1 इस फाइबर का, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n बोल सकते हैं। तो यहाँ n के जगह हम N1 बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस फाइबर का, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n1, so the ray is totally internally reflected. So in this way the ray undergo repeated total internal reflection until it emerge out of the other end of the fiber, even if the fiber is bent. ये क्या हो रहा, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जब तक कि रे बाहर नहीं निकल जाए फाइबर से और फाइबर बेंट ना हो। इसका मतलब क्या है, सो द लाइट रे इज, दिस लाइट रे इज गाइडेड थ्रू द फाइबर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये फाइबर हेल्प क्या कर रहा, इस रे ऑफ लाइट को एक एंड से स्टार्ट कर रहा और दूसरा एंड में ये निकल रहा, इमर्ज हो रहा, इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड विदाउट एनी एनर्जी लॉस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता। तो जब बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, द बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैन बी, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इस तरह का और भी ऑप्टिकल फाइबर जब रहेगा जिसमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैरिड ओवर दिस ऑप्टिकल फाइबर, सो उस तरह का नंबर ऑफ जब ऑप्टिकल फाइबर्स है तो उसको बोलेंगे बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। द बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिकल सिग्नल transmission. It can also be used for transmission and receiving of electrical signal. Bundles of optical fiber, इसको क्यों यूज किया है, it can be used for optical signal transmission, और इसका यूज कहाँ होगा, ट्रांसमिशन और रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जस्ट अ मिनट रुक जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर। आज मेरा अभी क्या क्या हो गया, यहाँ evanescent wave and tunneling of photon।
इस केस में क्या ले रहे हैं, अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे, इधर आगे की ओर इस पार्ट में आएंगे। इस पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एडवांसेंट वेव एंड टनलिंग फोटोन में we are using a prism and the light ray incident on the surface of the prism, then it is reflected into the downward direction. तब दूसरा another prism is kept near into the interface of the first prism. तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि transmitted wave are created through the second prism. फाइबर ऑप्टिक्स का जो फाइबर कंस्ट्रक्शन क्या है, कोर इंटरनल पार्ट है फाइबर का, कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग इज सराउंडेड बाय सिलिकॉन कोटिंग बफर जैकेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर से हमको फाइबर को बचाता है, ठीक है। और क्लेडिंग फाइबर का जो लेंथ है 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, और इसका जॉइंट कनेक्टर से कनेक्ट रहता है। इसका रेंज आउटर डायमीटर का रेंज रहेगा ऑप्टिक फाइबर का 1 to 600 नैनोमीटर, सॉरी 0.1 mm to 0.15 mm। कोर का रेंज है 6 to 500 माइक्रोमीटर। क्लेडिंग का रेंज है, आउटर डायमीटर रेंज है क्लेडिंग का 125 माइक्रोमीटर टू 750 माइक्रोमीटर क्लेडिंग का। जब हम लोग प्लास्टिक और ग्लास के बारे में बोल रहे हैं तो 3 तरह का फाइबर इसमें मिल रहा है। कौन कौन सा? फर्स्ट क्या है, या प्लास्टिक कोर प्लास्टिक क्लेडिंग। सेकंड क्या है, ग्लास कोर प्लास्टिक क्लेडिंग। थर्ड क्या है, ग्लास कोर ग्लास क्लेडिंग। यही तो है। जब प्लास्टिक कोर ले रहे हैं, सॉरी जब प्लास्टिक का केस बोल रहे हैं तो कोर किससे बना रहेगा, पॉलीस्टीरीन से और पॉलीमिथाइल एक्टाक्लोराइड से। और क्लेडिंग किससे बना रहेगा, टेफ्लॉन से और सिलिकॉनेट से। जब ग्लास का केस रहेगा तब कोर और क्लेडिंग बोथ आर मेड बाय सिलिका। इस बात को याद रखना है फाइबर कंस्ट्रक्शन के लिए। ये पार्ट अभी जस्ट बताए। अब हम लोग आ रहे हैं प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर। प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये फाइबर ही है ना, इससे होकर के लाइट पार कर रहा है। प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर। So the main function of optical fiber is to accept maximum light and transmit the same with minimum attenuation। तो 2 तरह का फैक्टर है। पहला क्या है, फाइबर जो है लाइट ऑप्टिकल मेन फंक्शन क्या है, मैक्सिमम लाइट को एक्सेप्ट करना और ट्रांसमिट करना। तो लाइट गैदरिंग एबिलिटी, फाइबर का काम क्या है, फाइबर इज टू हैज एबल टू लाइट गैदर and it depends upon 2 factors. One is the core size and another is the numerical aperture. One is the core size and another is the numerical aperture। याद रखना इस चीज को। फाइबर has a ability to gather light and it depends upon 2 फैक्टर। 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है, कोर साइज एंड अनदर इज द न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर एकदम पूछेगा ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सर हाँ सर, इसका नोट्स पूरा डाल दिए क्या एलएमएस में?
नहीं अभी डाले नहीं, उसको कल देखते हैं, कल थोड़ा मोबाइल में इसको खींचेंगे फिर भेजेंगे। हाँ जी पूरा डीपली में भेजिएगा सर। इससे पहले जो भेजे थे सर उसमें कुछ कुछ नहीं था, फिर धनेश्वर हमको भेजा है उसमें पूरा ये था सर। अरे धनेश्वर जो भेजा है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर का है। हाँ वही तो बोल रहे सर, पहले वाला जो था ना आप जो भेजे थे उसमें जो एलएमएस में डाले थे उसमें तो शॉर्टकट दिया हुआ था। हाँ जो एलएमएस में डाले हैं वो शॉर्टकट था, हाँ उसका नहीं। जो जो धनेश्वर हमसे कलेक्ट किया है और ग्रुप में जी, भेजा है, हाँ ग्रुप में भेजा है वही वाला हम लिख रहे हैं सर। हाँ बस बस वही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। जी सर। समझ में आ रहा ना? जी और एलएमएस में सर जो डाला था वो तो शॉर्टकट दिया था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था एलएमएस में नोट्स। जैसे अभी अभी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जी ये पार्ट हम एलएमएस में डाल देंगे, इस पार्ट को। जी ठीक है, तो इसका जी बारे में सर। तो लिखा हुआ नहीं है ना, नहीं है। लेकिन नोट्स क्या होगा कि वही धनेश्वर को हम फिर ग्रुप मेल में डाल देंगे, धनेश्वर तुम लोग को दे देगा, जी जी या सर। धनेश्वर हम लोग से हमसे कलेक्ट करेगा और वो सेंड कर देगा सभी को। जी सर। समझ में आ रहा ना? यस सर। बस बस यही बात है। इसको तुम ठीक लिखोगे, अपने से नोट्स बनाओ, अदरवाइज इस डायग्राम को देख करके अपने से नोट्स बना सकते हो, और नहीं तो जी नोट्स सर। बनेगा तो थोड़ा वेट करो। जी सर। नोट जितना है मेरा पास, और एक दो दिन बनाएंगे तो हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। और उसके जी बाद सर। धनेश्वर को दे देंगे, धनेश्वर अपना साइट तुम लोग को ग्रुप में डाल देगा, जी सर। है ना? ये देखो सर ये अभी तो सर हम लोग 2 जन है सर। है, 2 ही जन पढ़ेंगे क्या सर? वही जन है। हाँ हम और हाँ रोहन तो दो है चार तभी से। मिनट तो है, रुक जाओ, क्या दिक्कत है, दो चार हाँ मिनट है, ठीक है सर। ज्यादा नहीं। ठीक है सर। ये लड़का ठीक। लोग का गलत चीज है ना, बोल देना। इस तरह रहेगा तो हम नोट्स यस क्यों सर। लेंगे जी? यही तो तो ना सर। अब यही सेम चीज को हमको फिर कल बताओ। हम्म। दोपहर है तो क्लास, तुम लोग अभी क्लास, कॉलेज खुला रहता तो कॉलेज आता कि नहीं? बोलो, क्लास तो आना पड़ता ना, यस सोने का सर। तो नई जगह मिल जाता, आप घाट से खा पी के जी सो रहा है, तो गलत चीज है ना जी। जी सर। खुद ये चीज नहीं बताएंगे कल तो सब आगे किसी को समझ में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या समझ में आएगा, बोलो? नहीं आएगा सर। अभी ये पार्ट मेरा न्यूमेरिकल एपरेचर वर्ड आ गया, देखो तो। अब फाइबर का काम क्या है? प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर, इसका काम है गैदर करना लाइट को, और जब ये गैदर कर रहा लाइट को तो इसका दो फैक्टर हो रहा। पहला कोर साइज, कोर जो इंटरनल पार्ट है, और ये चीज सुबह में देखा गया रे, ये तो अभी पढ़ाए थे, फिर इसको रिपीट कर रहा है। वो लोग तो ये नहीं सोचा कि इसके बाद भी आगे बढ़ जाएंगे इस पार्ट में। क्या बोलोगे तुम सब है एकदम। फाइबर का एबिलिटी क्या है कि लाइट को गैदर किया, और डिपेंड कर रहा दो चीज पर, कोर साइज और न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर देखना, सभी कुछ कुछ जगह लिखा रहेगा NA, न्यूमेरिकल एपरेचर NA। अब न्यूमेरिकल एपरेचर, कोर ऑफ साइज तो हम लोग जान रहे हैं, डाया, ये तो मालूम है हम लोगों को, 6 to 500 माइक्रोमीटर। numerical aperture depends upon acceptance and angle and acceptance cone, इस दो चीज पर ये न्यूमेरिकल एपरेचर डिपेंड कर रहा है। इसका फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला फिर उसके आधार पर न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल एपरेचर का एक्सेप्टेंस एंगल निकालना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस कोण निकालना पड़ेगा। तो ये क्या, किस चीज का नाम है न्यूमेरिकल एपरेचर, ये तो जानना होगा ना। और न्यूमेरिकल एपरेचर तभी जानोगे जब एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण क्लियर रहेगा। ये देखो मेरा फाइबर ऑप्टिक्स, सॉरी फाइबर है ये मेरा वन एंड है और ये अनदर एंड है। देखो तो
यही डायग्राम है ना, सेम डायग्राम को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस डायग्राम को दिखा आनंद तो सेम Yes, डायग्राम sir. है ना जी। देखो ये कोटिंग किया जी। हुआ है, देखो ये बाउंड्री कोटिंग है, यहाँ इंसिडेंट रे जा रहा है, वन एंड से पार किया, दूसरा एंड में गया, देखो ये दूसरा एंड से निकल गया, ये देखो इस पार्ट, और ये तब निकल रहा जब तक कि फाइबर बेंड नहीं हो रहा, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते 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 ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा फाइबर, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। अब इसी डायग्राम के आधार पर हम लोग निकालेंगे एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण। तो वी कंसीडर एन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू लाइट इज बीइंग सेंट, हम लोग बोल रहे हैं लाइट इज बीइंग सेंट, द एंड एट विच लाइट इंटर्स इज कॉल्ड लॉन्चिंग एंड। इसको लाइट जिससे इंटर कर रहा है उसको लॉन्चिंग एंड बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का N1 है, यहां पर बताया गया है इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। हम लोग को मालूम है ये चीज, तो बताया पहले ही बोले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। अगर मेरा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो हम क्या लिखेंगे, N2 इज लेस देन N1। ये देखो कोर है मेरा ये पार्ट, अब क्लेडिंग कहां दिखा रहे हैं, ये पार्ट है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर देखो हम क्या दिखा रहे हैं, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो N2 is less than N1. So the refractive index of this medium K, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स K थ्रू विच लाइट इज लॉन्च दी N0, N0 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम कैन बी रिटन एज N0। कोर को जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का N1 लिख रहे हैं, क्लेडिंग का N2 लिख रहे हैं, तो मीडियम, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, N0, उसको हम लोग बोलेंगे N0। लाइट बीम इंटर एट एन एंगल, ये लाइट देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट, ये कहां पर इंसिडेंट हुआ, इस पार्ट पर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां आएगा, कर्सर को ध्यान दो यहां पर आएगा। तो थीटा यहाँ क्या हो गया, बाउंड्री पर जब इंसिडेंट हो गया ये रे ऑफ लाइट, तो यहां पर एंगल बन रहा थीटा, कर्सर को ध्यान दो यहां पर। तो लाइट बीम इंटर एट एन एंगल आई, ये आई टू द एक्सिस ऑफ द फाइबर, ये फाइबर का ये एक्सिस है। जस्ट मिनट रुकिए, फाइबर का ये एक्सिस है, यहां पर इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल आई with the axis of the fiber. The ray gets reflected at an angle R and strikes the core cladding interface at an angle phi. यहाँ पर देखो फाई एंगल बना रहा, कोर और क्लेडिंग दोनों का इंटरफेस इस पर। ये रे जब इंसिडेंट रे फाइबर से होकर के पार किया, तो इंसिडेंट एंगल ये स्टार्टिंग में बनाया इस पोजीशन में, यहां पर क्या बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इस